Assalamu alaikum, dear student. I am Sir Muhammad Adil Javed, and today video I am going to explain your topic, which is related to the English language, and the title of my topic is parts of speech. And this topic uh, is represented to you by Sir Muhammad Adil Javed. Dear students, first of all, I am going to explain the meaning of parts of speech, or simply I am defining parts of speech. The words in English language are grouped into parts of speech according to their meaning and function. इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है बेटा, ये आपके जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलके बनती है. यू कैन सिंपली से दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच मेक अ सेंटेंस. कोई भी सेंटेंस या जुमला जो होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलके बनता है. यानी स्पीच का मतलब गुफ्तगू होता है, गुफ्तगू के हिस्से. गुफ्तगू में आप क्या यूज करते हैं? सेंटेंसेस यूज करते हैं. तो यू कैन सिंपली से दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द पार्ट ऑफ सेंटेंस. ये जुमले का हिस्सा होते हैं. एंड द डिफरेंट सेंटेंसेस आर कंबाइंड टुगेदर, they form the English language. In every language, you use to express yourself by sentences. So English language is made up of parts of speech. Parts of speech make the sentences in English language. There are 8 parts of speech. First of all, I am going to tell you about their names. The first part of speech is called the noun. Second is pronoun. Third is verb. Fourth is adverb. Fifth is adjective. Sixth is preposition. Seven is conjunction. And the eighth and the last one is the interjection. These eight names are the 8 parts of speech. Okay, now students, now I am going to uh, explain 8 parts of speech one by one. The first part of speech is called the noun. Noun is the name of any person, place, thing, animal, object, etc. Or you can simply say that the naming words are called the noun. Every living organism or non-living organism in the world have some specific name, and the naming words are called the noun. For example, Ahmed, Islamabad, America, the tomb of Quaid-e-Azam, the Karachi Zoological Garden. These are the name of different uh, persons, places, and different things. So the naming words are called the noun. Okay, now I am going to explain you the second parts of speech. Second part of speech is the pronoun. The word which we use in place of noun is called pronoun. ऐसे अल्फाज जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहे होते हैं उनको प्रोनाउन कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, एक्सेट्रा. किसी को भी मतलब बेटा जो है, आप जब किसी को कॉल कर रहे होते हैं तो बार बार जो है बेटा उसको जो है हमें नेम कॉल करने की जरूरत नहीं होती है. हम जो है नेम के बजाय उसका जो है रिलेटेड जो है प्रोनाउन भी हम यूज कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अहमद इज अ गुड बॉय. अब इससे अहमद से रिलेटेड अगर मैं सेकंड सेंटेंस बोलूंगा तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि अहमद बिलोंग्स टू अ नोबल फैमिली. मैं ये भी बोल सकता हूँ ही बिलोंग्स टू अ नोबल फैमिली. तो जो मैंने ये ही यूज किया है ये अहमद के लिए बेटा यूज किया गया है. तो द वर्ड विच वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड द प्रोनाउन. द थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ब. The action words are called verb. The words which are showing us they are performing some function in the sentence, they are called verb. ऐसे अल्फाज बेटा जो किसी सेंटेंस में किसी काम या सिचुएशन का
करना या होने के बारे में हमें बताते हैं। तो जो ये एक्शन वर्ड जो होते हैं इनको वर्ब कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सीमा राइट्स आ स्टोरी। सीमा एक कहानी लिखती है। तो सीमा जो है बेटा इसमें एक जो है फंक्शन कर रही है, लिखना या लिखती है। तो ये लिखना जो होगा इसको आप इंग्लिश में राइट्स बोलने हैं। दिस इज द एक्शन वर्ड एंड दिस एक्शन वर्ड इज कॉल्ड द वर्ब। स्टूडेंट स्टडी इन स्कूल। तालिब इल्म स्कूल में पढ़ते हैं। तो तालिब इल्म स्कूल में क्या फंक्शन करते हैं? स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। स्टडी इज अ वर्ब। बॉयज प्ले इन द प्लेग्राउंड। लड़के जो है खेल के मैदान में खेलते हैं। लड़के खेल के मैदान में क्या मतलब अपना फंक्शन कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। तो ये जो है बेटा प्ले जो है ये क्या है आपका? एक्शन वर्ड है। सो द वर्ब express us the meaning to show some work. Okay, now the four parts of speech is called the adverb. Adverb add something in the meaning of verb. Adverbs are the parts of speech and they add some thing in the meaning of verb uh, and they are called adverbs. For example, he runs। ये बेटा आपके सामने सेंटेंस बोला कि वो भागता है। लेकिन अगर ये बोला जाए ही रन्स फास्ट, वो तेज भागता है या तेज दौड़ता है। तो ये फास्ट जो है इसने वर्ब रन के मीनिंग में इजाफा किया। तो इसको बेटा हम क्या बोलेंगे? जो फास्ट जो मैंने वर्ड यूज किया है ये आपका एडवर्ब है। इसने वर्ब के मीनिंग में एडिशन किया है, वर्ब के मीनिंग में इजाफा किया है। शी स्पीक्स लाउडली। लाउडली जो है बेटा ये जो है स्पीक के मीनिंग में इजाफा कर रहा है कि वो जो है बुलंद आवाज में बोलती है। शी स्पीक्स लाउडली। तो ये स्पीक के मीनिंग में इजाफा हो रहा है लाउडली। द सोल्जर फाउट ब्रेवली। सिपाही बहादुरी से लड़ा। तो जो है बेटा ये लड़ने के मीनिंग में इजाफा हो रहा है, बहादुरी से लड़ा। तो हम यूज कर रहे हैं ब्रेवली। तो ब्रेवली जो है बेटा ये आपके फाउट के मीनिंग में या वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। so the words which add something in the meaning of verb are called the adverb. Okay, the fifth part of speech is the adjective. Adjective qualifies noun and pronoun. Adjectives are the words that qualifies noun and pronoun. Adjective बेटा ऐसे अल्फाज होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं उनकी जो है बेटा कोई क्वालिटी को शो कर रहे होते हैं। सही है, यानी क्वालिटी के मतलब ये होता है यानी जो है उनकी यानी किसी भी मतलब नाउन या प्रोनाउन की कोई मतलब बेटा गुडनेस, बैडनेस, कोई अच्छाई, कोई बुराई। देयर शेप, उनका शेप हो गया, उनका साइज हो गया, कलर हो गया। तो ऐसे वर्ड जो होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे होते हैं उनके बारे में हमें उनकी यानी खुसूसियात के बारे में बता रहे होते हैं। यानी जो है आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक या खुसूसियात जो होती हैं ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मतलब ये कि सिंपल यानी नाउन या प्रोनाउन के बारे में यानी कुछ क्वालिटी या उनकी मतलब अच्छाई, बुराई, तादाद, मिकदार, इनको बताने वाले अल्फाज जो होते हैं ये आपके एडजेक्टिव कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीमा हैज कर्ली हेयर। सीमा के कर्ली हेयर हैं, घुंघरियाले बाल हैं। तो यहाँ बेटा हेयर जो है उनकी मतलब क्वालिटी बयान की जा रही है, कर्ली, सही, घुंघरियाले। तो ये जो है बेटा आपका एडजेक्टिव होगा। सीमा हैज कर्ली हेयर, तो कर्ली इज द एडजेक्टिव। अहमद इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास। अहमद जो है क्लास का सबसे ज़हीन तरीन लड़का है। द मोस्ट इंटेलिजेंट ये जो है बेटा अहमद की क्वालिटी को जाहिर कर रहा है। तो द मोस्ट इंटेलिजेंट इज द एडजेक्टिव। Okay, now I am giving you some more example which is related to the adjective. Rashid Mehnaz was the tallest man of Pakistan.
सॉरी आलम चन्ना, भाई आलम चन्ना जो थे वो जो है पाकिस्तान के सबसे जो है टॉलेस्ट आदमी थे, यानी सबसे लंबे कद के आदमी थे। तो जो है बेटा ये उनकी क्वालिटी को बेटा शो कर रहा है टॉलेस्ट, यानी उनका जो लंबा कद जो है वो जो है आलम चन्ना जो थे, ये जो है बेटा उनकी यानी क्वालिटी को शो कर रहा है। इसी तरह से आई बाउट फ्रेश रेड एप्पल्स, इसमें जो है ना बेटा बाद दफा ये होता है कि हम एडजेक्टिव जो है एक साथ जो है एक से ज्यादा भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपके सामने एक एग्जांपल यूज की, आई बाउट फ्रेश रेड एप्पल्स, मैंने जो है ताज़ा और लाल सेब खरीदे। तो ये जो है बेटा फ्रेश या रेड, ये जो है बेटा आपकी एप्पल की क्वालिटीज को शो कर रहा है कि वो जो है फ्रेश भी हैं, ताज़ा भी हैं, और उनका कलर जो है वो मतलब जो है रेड है या लाल कलर है। तो जो है बेटा ऐसे वर्ड जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को जाहिर करते हैं, या फिर उनकी मिकदार को जाहिर कर रहे होते हैं, उनके कलर को शो कर रहे होते हैं, या उनकी यानी नंबर को शो कर रहे होते हैं, तादाद को शो कर रहे होते हैं। जैसे अगर आपने बोला कि आई बाउट अ डजन एग्स, मैंने एक दर्जन अंडे खरीदे, तो ये एग्स की जो है नंबर को शो कर रहा है, तादाद को शो कर रहा है, अ डजन, तो ये एक दर्जन। तो ये भी आपका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। Okay, now student, I am going to explain you about the six parts of speech, and which is called the preposition. Preposition is the part of speech, and it shows the relation between two parts of speech, or it shows the uh, location of any substance or anything. प्रीपोजिशन जो है बेटा ये वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो कि सेंटेंस के अंदर टू पार्ट्स ऑफ स्पीच के दरमियान में रिलेशन को जाहिर करते हैं, या ये शो कर रहे होते हैं कि कौन सी चीज किस जगह पे मौजूद है। सही है, तो ऐसे आपके जो वर्ड जो होते हैं इनको प्रीपोजिशन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ ब्लैक पेन इन माई पॉकेट। देखें यहाँ इस सेंटेंस के अंदर जो बेटा मैं इन यूज कर रहा हूँ, जिसको उर्दू में आप मैं बोल रहे हैं, ये बेटा आपका प्रीपोजिशन है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आई हैव अ ब्लैक पेन इन माई पॉकेट, मेरी जेब में एक काला कलम है या काला पेन है। तो बेटा ये जो मैं यूज जो कर रहा हूँ या इन जो मैं यूज कर रहा हूँ सेंटेंस के अंदर, दिस इज कॉल्ड द प्रीपोजिशन। ये जो है बेटा पेन का और आपकी पॉकेट के दरमियान में रिलेशन को शो कर रहा है। यानी आपका जो मेरे पास जो एक ब्लैक पेन है वो मेरी पॉकेट में है, तो ये मैं जो यूज कर रहा हूँ या इंग्लिश में जो इन यूज कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड द प्रीपोजिशन। अच्छा, now I am going to give some more example which is related to the preposition. The name of my city is Karachi. मेरे शहर का नाम कराची है। तो इस सेंटेंस के अंदर जो बेटा मैं जो है ऑफ यूज जो कर रहा हूँ, और इसको उर्दू में जो है का के की जो ये मैं इसमें वर्ड यूज कर रहा हूँ, मेरे शहर का नाम, का जो मैं यूज कर रहा हूँ, और इंग्लिश में जो मैं ऑफ यूज कर रहा हूँ, तो ये जो है बेटा आपका जो है वर्ड जो क्या है, प्रीपोजिशन है। आई बाउड अ गिफ्ट फॉर माई ग्रैंड मदर, मैंने अपनी दादी माँ के लिए एक तोहफा खरीदा। ये जो बेटा मैं इंग्लिश में फॉर यूज कर रहा हूँ और उर्दू में के लिए यूज कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड द प्रीपोजिशन। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी के मुताबिक क्या टाइम हुआ है, के मुताबिक या बाय जो बेटा यूज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द प्रीपोजिशन। शी इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, वो मिठाइयों की शौकीन है। तो यहाँ पे बेटा मैं जो ये का यूज कर रहा हूँ या ऑफ जो यूज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द प्रीपोजिशन। द स्कूल विल रिमेन क्लोज फ्रॉम सैटरडे टू संडे, स्कूल जो है हफ्ते से इतवार तक बंद रहेगा। तो यहाँ पे जो बेटा मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ फ्रॉम, और उसके बाद जो टू यूज कर रहा हूँ। सही है, तो ये जो है बेटा आपके जो है शो कर रहे हैं कि इस वक्त से लेके इस वक्त तक। तो ये जो है बेटा आपके क्या कहलाएंगे, यानी फ्रॉम और जो है टू जो है ये आपके क्या है, प्रीपोजिशन है। इसी तरह से बेटा जो है और बहुत सारे भी आपके जो प्रीपोजिशन होते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं कि वी लिव इन
अमेरिका, हम अमेरिका में रहते हैं। तो यहाँ पे जो इस सेंटेंस में इन यूज जो कर रहा हूँ या उर्दू में आप मैं यूज जो आप कर रहे हैं, ये आपका है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो होते हैं, इनको अगर सेपरेटली अगर आप इनको बोलेंगे, जैसे ऑफ हो गया या बाय हो गया या ऑन हो गया, एट हो गया, तो ये कोई पार्टिकुलर मीनिंग नहीं दे रहे होते हैं। बट विदाउट देम द सेंटेंस डज नॉट क्लियर। लेकिन इनके बगैर जो है सेंटेंस क्लियर नहीं होता, सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं होता। जैसे अगर मैं ये सेंटेंस आपके सामने बोल रहा हूँ, वी लिव अमेरिका, इसमें जो है, या उर्दू में अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम अमेरिका रहते हैं, तो इसके अंदर थोड़ा सा आपको कोई चीज मिसिंग लग रही है। इसमें जैसे इंग्लिश में इन यूज होगा और उर्दू में मैं यूज होगा। तो ये जो है बेटा सेंटेंस के अंदर, जैसे आप जो है मैं हो गया, ने हो गया, को हो गया, तक हो गया, से हो गया, ये अगर अलग से आप बोल रहे हैं तो उर्दू में भी ये कोई मीनिंगफुल नहीं है। लेकिन इनके बगैर जो है सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल नहीं होता है। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट in making sentence, because they make the sentence meaningful. Okay, now students, I am going to explain you the 7 parts of speech, and the 7 parts of speech is conjunction. Conjunction are the connectors. Conjunction को बेटा connector भी कहा जाता है, because they join two words, two clauses or two sentence, and they join to make them one sentence. कंजंक्शन जो होते हैं बेटा, ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो दो अल्फाजों को या सेंटेंस के क्लॉसेस को या टू सेंटेंसेस को या इससे भी ज्यादा सेंटेंसेस को ये आपस में कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तभी इनको कनेक्टर भी कहा जाता है। अब जैसे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स इससे रिलेटेड जो है अब मैं आपको जो है दे रहा हूँ। आई एम वेरी हंग्री टुडे, मैं आज जो है बहुत भूखा हूँ। बट आई कुड नॉट फाइंड एनी फूड, लेकिन मुझे कोई फूड या कोई ग़िज़ा नहीं मिल सकी। जो बेटा मैं इस सेंटेंस के अंदर जो मैं बट यूज कर रहा हूँ, लेकिन, तो ये बेटा आपका क्या है, कंजंक्शन। एक और सेंटेंस आप देखें, अहमद एंड अली आर बेस्ट फ्रेंड। अहमद और अली जो है बेस्ट फ्रेंड है, सबसे मतलब बेहतरीन दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं। तो यहाँ पे बेटा जो है अली और अहमद के लिए मैंने कंजंक्शन यूज किया है एंड। इसी तरह से she did not come to school because she is ill, वो आज स्कूल नहीं आई थी क्योंकि वो बीमार है। जो मैं बेटा जो यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है बिकॉज, ये आपका क्या है, कंजंक्शन। क्योंकि जो है ये सेंटेंस के यानी जो है सेंटेंस के टू पार्ट्स को या क्लॉसेस को आपस में कंबाइन कर रहा है। डू एज आई टोल्ड यू, जैसा तुम्हें कहा गया है वैसा करो। तो जो है ना, जो मैं इसमें एस जो यूज कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड द कंजंक्शन। सही है बेटा, अब इसकी मीनिंग आपको क्लियर हो गई। कंजंक्शन जो है बेटा ये ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो कि सेंटेंस को या वर्ड को या सेंटेंस के क्लॉसेस को आपस में कंबाइन कर रहे होते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं। ओके नाउ स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच विच इज कॉल्ड द इंटरजेक्शन। Interjection are the special words and they show the heartly feelings. Interjection जो होते हैं बेटा ये ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो किसी मतलब आपकी जो है इमोशंस को या आपके हार्टली जो फीलिंग्स जो होती हैं, दिली जज्बात जो होते हैं, ये उनको शो कर रहे होते हैं। और ये जो है किसी भी मतलब इमोशन के वक्त आपके मुंह से सडनली जो है बेटा ये डिलीवर होते हैं। ऐसे जो आपके स्पेशल वर्ड जो होते हैं, इन्हें इंटरजेक्शन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा, वी हैव वोन द फाइनल मैच। आपने बोला आहा, हमने फाइनल मैच जो है जीत लिया है। सही है। तो ये जो आपने एकदम हुर्रा जो बोला है, या उर्दू में आप जो आहा जो आप बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द इंटरजेक्शन। ये आपका जो है इंटरजेक्शन वर्ड है। सही है बेटा। इसी तरह से जैसे फर्ज कर लें कि जो है मेरा जो है एंकल जो है चलते हुए एकदम ट्विस्ट हो जाता है, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे मुंह से एकदम आवाज निकलेगी आउच। तो ये आउच जो मेरे मुंह से जो डिलीवर हुआ है, दिस इज कॉल्ड द इंटरजेक्शन। इसी तरह से फर्ज कीजिए कि किसी रिलेटिव की डेथ हो गई है, तो उसने कोई इस तरह से सेंटेंस बोलेगा, अलास आई हैव लॉस्ट माय अंकल, अफसोस मेरे अंकल का इंतकाल हो गया है। या अलास माय अंकल हैज डाइड, अफसोस मेरे अंकल इंतकाल कर चुके हैं।
तो ये जो अलास जो आप बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द इंटरजेक्शन। इसी तरह से जैसे आप बोलते हैं ब्रावो होता है, या फिर बकअप होता है, या ऐसे बहुत सारे मतलब और भी मतलब जो है वर्ड होते हैं, जो कि मतलब आप जो है मतलब अपनी फीलिंग को शो करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो ऐसे अल्फाज जो होते हैं बेटा, ये आपके क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। ओके, सही है बेटा। अब एक दफा मैं इनको एक दफा से और रिपीट कर देता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मेक अ सेंटेंस एंड द डिफरेंट सेंटेंसेस मेक एनी लैंग्वेज। एंड इन इंग्लिश लैंग्वेज there are 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, and interjection. Naming words are called the noun. The words which we use in place of noun are called pronoun. The action words are called verb. And the word which adds something in the meaning of verb are called adverb. And the word which qualifies noun and pronoun are called the adjective. Preposition shows the relationship between two parts of speech in the sentence. Conjunction are the connector. They connect two words, two clauses, and two sentences. And interjection shows your emotion. So these 8 parts of speech I have uh, or defined you. I hope you understand these parts of the speech. And in the last, I am requesting you please like and subscribe our channel Three Genius Brothers. And till the next video, Sir Muhammad Adil Javed want to say you goodbye.